वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज सब्सटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन कंडक्टर्स, नंबर टू सेमी कंडक्टर्स एंड नंबर थ्री इंसुलेटर्स। Conductors, substances which conduct electricity or which allow to pass electricity through movement of electron or movement of ion in native state or aqueous solution or molten state are known as conductors, and this process is known as a conductance. These are of two types. Number one, metallic conductors. Number two, electrolytic conductors. Metallic conductors are also known as electronic conductors or first class conductors or simply metals, while electrolytic conductors are also known as ionic conductors or second class conductors or electrolytes. Electrolytes are of two types. Number one, strong electrolytes. Number two, weak electrolytes. Strong electrolytes, chemical substances which are almost completely dissociated into ions in aqueous solution or molten state, are known as strong electrolytes. Weak electrolytes, chemical substances which are partially dissociated into ions in aqueous solution, are known as weak electrolytes. With increase in temperature, conductivity of metallic conductor decreases. With increase in temperature, conductivity of electrolytic conductors increases. With increase in temperature, conductivity of semiconductors increases. While in case of insulator, with increase in temperature, conductivity of insulators too increases. Increase is very small because insulators have negligible conductivities. The energy gap or forbidden gap between valence band and conduction band is very high, very large. तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1, paramagnetic substances. Number 2, diamagnetic substances. Number 3, ferromagnetic substances. Number 4, ferrimagnetic substances. And number 5, antiferromagnetic substances. So based on physical properties, solids or substances are of 5 types. Number 1, paramagnetic substances. एंड पैरामैग्नेटिज्म। प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, पैरामैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। सब्सटेंसेस विच आर वीकली और पुअरली और फीबली और नेग्लिजिबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर नोन एज paramagnetic substances, and this property is known as paramagnetism. फिर अच्छा क्वेश्चन आ रहा ही होता है, why are substances paramagnetic or why do substances show paramagnetism? This is due to presence of one or more than one unpaired electron. इसको दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा देंगे बेटे, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ये दिखा दिया, अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरा ये दिखा दिया, एक और दिखा दो बेटा। एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, तो O2 यूनी पॉजिटिव, क्यूप्रिकाइन, फेरिकाइन, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नंबर 2, diamagnetic substances, and this property is known as diamagnetism. प्रॉपर्टी को बेटा डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं।
तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्ट रिपल्ड बेटा, सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपल्ड बाय ए मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड आर नोन एज diamagnetic substances, and this property is known as diamagnetism. Why do substances show diamagnetism or why are substances diamagnetic? This is due to presence of all paired electron and absence of unpaired electron. तो इसको इस तरह से दिखा देंगे बेटे, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज है और फिर बेटे एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक स्पिन जीरो होगी बेटा। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो डायमैग्नेटिक में अन्य Cl मतलब अन्य X सारे हो गए, KX सभी हो गए, RBX सभी हो गए, CSX सभी हो गए, LIX सभी हो गए, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बहुत है बेटा, O2 डाई नेगेटिव है, N2 है, एक्सेट्रा। थर्ड हम बात कर रहे हैं बेटा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है फेरोमैग्नेटिज्म। ध्यान से देखना बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसको बेटा इस तरह से लिखते हैं भाई, एक ही डायरेक्शन में ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 दिखा दो, 6 दिखा दो बेटा। Substances which are strongly attracted by a magnet are known as ferromagnetic substances and this property is known as ferromagnetism. Why are substances ferromagnetic or why do substances show ferromagnetism? This is due to presence of a large number of unpaired electrons. In solid state, metal ion of ferromagnetic substances are grouped together into a small region called domains. Each domain acts as a tiny magnet. Next है बेटा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरीमैग्नेटिज्म। फोर्थ है बेटा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और प्रॉपर्टी को बोलेंगे फेरीमैग्नेटिज्म बेटे, फेरीमैग्नेटिज्म। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच, अब ध्यान से देखना बेटा, इसको ऐसे दिखाते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरे में ये भी क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज बेटा। तो देखने में तो ये लगता है बेटा कि मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है बेटा, लेकिन वास्तव में क्या होती हैं बेटे, कम। सब्सटेंसेस विच अपीयर टू हैव लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बट एक्चुअली दे हैव लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, such substances are known as ferrimagnetic substances and this property is known as ferrimagnetism. Why are substances ferrimagnetic or why do substances show ferrimagnetism? This is due to presence of unequal number of domain or unpaired electron in opposite direction. Unequal number of domain or unpaired electron बेटा। एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा, जैसे फेरो के एग्जाम्पल की बात करें तो कोबाल्ट है, निकल है, CrO2 है, आयरन है, गैडोलिनियम है, बहुत ही अच्छे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा। फेरी की बात करें बेटा तो इसमें आ जाएंगे फेराइट्स। फेराइट्स क्या होते हैं बेटा, Fe2O3 बेटा। वेयर क्या है बेटा, जहाँ मैग्नीज हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है बेटा। तो इसमें हो जाएंगे एग्जाम्पल Fe3O4 रेड ऑक्साइड, लोडस्टोन, मैग्नीटाइट।
इसी तरह से बेटा Zn Fe2O3 बेटा, Mg Fe2O3 बेटा, इसी तरह से कोबाल्ट CO Fe2O3, Ni Fe2O3, Mn Fe2O3 etc. बेटा, these are some example of a फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये देखा गया है बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, फेरी भी किस में चेंज हो जाता है बेटा, पैरामैग्नेटिक में। उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं बेटा, CURIE, क्यूरी, मैरी क्यूरी बेटा। मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी दो हस्बैंड वाइफ थे बेटा। मैरी जो क्यूरी है बेटा ये पोलैंड की रहने वाली थी। जो पोलोनियम जो एलिमेंट है उन्होंने अपने देश के नाम से रखा है बेटा पोलोनियम, पोलैंड के नाम से ही। तो इसको बेटा 850 केल्विन पर हीट करेंगे बेटा तो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। इस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक में। What happened when Fe3O4 is heated at 850 Kelvin temperature? Fe3O4 is a ferrimagnetic substances and converted into paramagnetic substances. This temperature is known as Curie temperature. This is due to randomization of spin. इसका कारण है बेटा। फिर हम बात कर रहे हैं मतलब फेरी और फेरो दोनों बेटा। लास्ट है बेटा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा। लास्ट में हम बात कर रहे हैं बेटा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें हम दिखाना चाहिए इलेक्ट्रॉन तो एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है, फिर क्लॉकवाइज है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो सब्सटेंसेस विच हैव जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। Why are substances anti-ferromagnetic or why do substances so exhibit, possess, contain, consist or have anti-ferromagnetism? This is due to presence of equal number of domain or unpaired electron in opposite direction. एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीन क्लॉकवाइज तीन एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन और अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बेटा तो MnO, MnO2, Mn2O3 etc. These are some एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जब एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करेंगे बेटे तो वो भी पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। वो टेम्परेचर नील टेम्परेचर कहलाता है बेटे, नील बेटे, नील टेम्परेचर। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच an anti-ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substances। और फेरो या फेरी जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो पैरा में चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हीट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, ये नील टेम्परेचर कहलाता है बेटा। तो उम्मीद है बेटा इसके अलावा एक छोटी बात और बेटे 11th क्लास में हमने पढ़ी थी बेटे, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है बेटा, ये भी काम आएगा बेटे बोर्ड में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। म्यू बराबर है n+2 अंडर रूट Bm। n क्या है, जहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। और Bm क्या है, यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की बोहर मैग्नेटॉन बेटा, BOHR मैग्नेटॉन, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, बोहर मैग्नेटॉन बेटा। अब जैसे हम बात करें बेटा निकल की बेटा तो वहाँ n की वैल्यू 2 होती है। बात करें Fe की बेटा तो n की वैल्यू 4 होती है। Fe डाई पॉजिटिव की बात करेंगे तो n की वैल्यू 4 होगी, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं। फेरिकाइन की हम बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 होगी। कोबाल्ट की बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 होती है, 3 होती है बेटा। और निकल की हम बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 बताई थी बेटा।
ठीक है बेटा। तो दिस इज बेटा, तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।